हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। आज हम लोग बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द concept of debit and credit. Today we are discuss about the concept of debit and credit. Every accounting transactions have got two sides, the debit side and the credit side. Debit side and credit side. These are the two sign used in the accounts to the presenting the report of the financial effect of every transactions. All the business transactions must have to debit and it's are corresponding to the credit. हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग दो टर्म यूज करते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये दोनों सिंबल्स जो हैं हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के साथ लगाना जरूरी होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही किसी एक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक इसके अपोजिट दूसरे ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर एक ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करना जरूरी होता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स है यूज टू द डेबिट एंड क्रेडिट सिम्बॉल्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ debit and credit? Why we are debit and the credit of the transaction? Debit and the credit are the two sides of the accounts. Left side is the known as a debit side and the right side is known as a credit side. All the accounting transactions have two sides. First side is a debit side and second side is a credit side. When we prepare the book of accounts, we must be a debit and we must be credit. Debit and the credit based on the double entry system. डेबिट एंड क्रेडिट करने का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यह किस पे निर्भर करता है? ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। इस डबल एंट्री सिस्टम्स के कारण ही हम हर एक ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम जब बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द बुक ऑफ द अकाउंट, इट्स द बेस टू द डुअल एंट्री सिस्टम. All the transactions have debit and the credit. Entire records in the entries are recorded in the left hand side and known as a debit item, and the entry recorded on the right hand side known as a credit transactions. जो एंट्री हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और जो एंट्री हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, अगर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट में राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ द क्रेडिट साइड ऑफ द accounts. And when we are recording to all the transactions in the left side of the book the accounts, so we say that all the transactions are debit side. Both debit and credits are equal in the transactions. When we recorded all the transactions in the book debit side and the credit side, all the transactions debit and credits are equal. So when we make account debit and credit sides are equal. Let us again we discuss a meaning of account. What is account? Account to created, and the account is a ledger recording and the summarized form of all the transactions that have taken place with the particular persons or things especially. Accounts is the recorded of a business transactions relating to the a particular person or item, and accounts has two sides. Left hand sides are called debit side and right hand side are called the credit side. हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को वो व्यक्ति या पर्सन किसी वस्तु से रिलेटेड हो सकता है, और इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में या तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं या तो क्रेडिट साइड में। तो कोई पर्सन हो सकता है, डेब्टर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकता है। तो
So all the transactions must be maintain a debit or credit sides in the book of account. Classification of accounts. Accounts we classified in the three categories. First is the personal account, second is the real account, and third is the nominal account. Basically, accounts have the two types, the personal and the impersonal account. And the impersonal account is divided to two parts, a real account and nominal account. Commonly, we see that the accounts is classified in three bases: personal account basis, real account basis, and the nominal account basis. When we talking about the personal accounts, the accounts recording transactions related to the individuals or firms or a company are known the पर्सनल अकाउंट. ऐसे सभी अकाउंट्स जिनका रिलेशन या किसी पर्सन से होना चाहिए, किसी फर्म्स के साथ होना चाहिए या किसी कंपनी के साथ होना चाहिए, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. जैसे राम, श्याम, LG कंपनी, मदरलैंड ब्रदर्स एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन सबको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं. अकाउंट इज़ द separate account is the open for the each such persons or firms by the recording their particular of the all the transactions in the cash or goods. हम हर व्यक्ति की या हर एक संस्था का एक पर्सनल अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर उसके साथ जो ट्रांजेक्शन्स होगा, इन चीज़ों के ट्रांजेक्शन्स होंगे. या तो हम कैश लेंगे या कैश देंगे या गुड्स सामान को बेचेंगे या खरीदेंगे. तो इन दोनों चीज़ों का जो है हम लोग उसके अंदर एंट्री करते हैं. नेक्स्ट अकाउंट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट इज ऑल्सो नोन द प्रॉपर्टी अकाउंट. इट्स रिकॉर्डेड आर डीलिंग इट्स ऑन और विथ preparations of the assets and the separate account is the key from the each class of the prepared. अब रियल अकाउंट्स को हम लोग एसेट्स अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं. इसके अंदर हम लोग सारे विजिबल्स अकाउंट जैसे एसेट्स हैं, गुड्स हैं, इन सब चीज़ों को दिखलाते हैं. कॉमनली रियल अकाउंट्स के अंदर हम एसेट्स एंड गुड्स को जो है वो मेंटेन करते हैं. गुड्स एंड एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रियल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. द अकाउंट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द लॉस, गेन, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर कॉल्ड रियल अकाउंट. एक ऐसा अकाउंट्स जो कि बिजनेस में होने वाले लॉसेस को, गेन को, एक्सपेंस को या इनकम को इंडिकेट करता हो, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. जैसे रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, कमीशन है, इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखते हैं. बैड डेप्ट है और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं. बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हम अकाउंट्स को जो है 3 हिस्से में क्लासीफाइड कर चुके हैं. आइए अब इन अकाउंट्स के अंदर हम लोग कैसे डेबिट्स एंड क्रेडिट करते हैं, इसके लिए एक गोल्डन रूल बनाया गया है. इस रूल को हम लोग समझते हैं. रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड. इस क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम किसी भी आइटम्स को कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. या डेबिट और क्रेडिट करने का ट्रेडिशनल अप्रोच जिसके अकॉर्डिंग टू हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू सारे अकाउंटिंग इवेंट्स को जो है क्लासिफाइड करते हैं. व्हेन वी क्लासिफाइड आइटम इन पर्सनल अकाउंट, द रूल्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Who is the receiver and who is the giver? A person who received the goods are debit. जैसे राम purchase a goods, the Ram is the receiver, and the Syam sell the goods and Syam give the goods. So debit the receiver and credit the giver. अगर राम कोई सामान खरीद रहा है तो इस समय हम देखते हैं कि राम क्या है, किसी सामान को खरीदने वाला है. अगर कोई दुकान कोई सामान खरीद रहा है तो उस समय वो दुकान क्या है, खरीदने वाला व्यक्ति है. तो कोई भी व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर्म हो, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में रखते हैं. और इस कारण हमको यह देखना होगा कि पर्सनल अकाउंट में जब ये व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है, सामान को खरीद रहा है या सामान को बेच रहा है, यानी वो उसको रिसीव कर रहा है या
दे रहा है, गिव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो वस्तु को रिसीव कर रहा है उस समय उसके अकाउंट्स को, उस पर्सन के अकाउंट को, उस फर्म्स के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अगर वो सेल कर रहा है ऐसे समय में वो उस वस्तु को दे रहा है, तो इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, उस समय उस पार्टिकुलर पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। वी नो दैट the real account is basically related to the goods and assets. It's related to the goods and assets. So goods and assets is come in and goes out. When we purchase the goods, it's come in. When we purchase the furniture, it's come in. When we purchase the telephone, it's come in. When we purchase a etc etc any goods, when we purchase, it's come in. And when we sell the goods, it goes out. The concept of the real account, when we purchase the goods and assets, it's a debit, and when we sell the goods and assets, it's a credit. It's clear. जैसे we purchase a pen, this times it is a in the business because a pen is a real account. And when we sell the pen as a shopkeeper, pen is the goes out, so we this time we are credited the pen, so it's clear. Next is a nominal account. Debit expense and the losses, debit all the expense and losses, and the credit income and gain. बिजनेस के अंदर हम सैलरी देते हैं, सैलरी पाते हैं, रेंट देते हैं, रेंट पाते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, कमीशन देते हैं, कमीशन पाते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। ये सारे कंडीशंस जो है हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हमको रेंट देंगे तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होंगे, बैड डेप्ट होगा, लॉस बाय फायर होगा, इस समय ये हमारे लिए लॉसेज होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम इन सारे लॉसेज को उस समय डेबिट करना चाहिए। अगर हमको इनकम हो रहा है जैसे सैलरी रिसीव, वेजेस रिसीव, कमीशन रिसीव, इस समय ये हमारे लिए क्या है, इनकम के सोर्सेस हैं, और इस समय हमको क्या करना चाहिए, सैलरी, रेंट या वेजेस को क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, बिजनेस में होने वाले किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को या लॉसेस को हमको डेबिट करना चाहिए, और किसी भी तरह के इनकम या गेन को जो हमको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट्स को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। It is a traditional approach of the classification of the accounting. We discuss about the modern approach of the accounting. It's also known the American approach. इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच ऑफ द अकाउंट्स, ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। भी हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाइड कर रहे थे, तो इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू उसको हम क्लासीफाइड करेंगे, तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स क्लासीफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज द एसेट्स, है नहीं, एसेट्स अकाउंट, ऑल द फाइंड आउट द ऑल द एसेट्स। Second category is the liabilities, third category is the capital account, and fourth is the expense and the losses, and the fifth is the income and gains. So we divided into 5 categories to all the accounting transactions according to the modern American approach. Okay, we discussed about the 5 concepts of classifications of the assets in next video. Okay, thank you, take care.